My name is Rizwan Khan and I'm your host for today's live session. काफी boring हो गया ना? I'll just try one more time and let people join. Okay. Hey everyone, my name is Rizwan Khan and you're watching Live with Rizwan only on Wild Country. If you like this one, just tell me in the comment section and from next time I'll do this introduction every time I come here. Okay. Before we move on to the live, I give a little introduction about what Wild Country is because after a few live sessions, people are like, what people wanted to know what Wild Country is about. So I'll give a quick introduction. Wild Country is an adventure app for the adventure people who love to follow their adventure and the passion, like the people who love to breathe adventure, who love to be in the wild every time. So it's the app for the one where they can connect with the like-minded people, they can connect with the brands, adventure brands, and it's a platform where they can showcase their skill, they can showcase what they follow, their adventure and everything else. So if you are someone who follow adventure activity, or if your friend is someone who's following any adventure activity, you can recommend the app and check out the link in our bio. Okay. Talking about the live, now this live session is very special. This live session is something where we bring people from the wild, people who are on the app, who are following their passion and following some or the other adventure activity, be it mountain biking, be it rafting, be it kayaking, everything adventure. We follow their adventure on the app. We bring them here to share their stories about their adventure and something that we get to know what the adventure actually looks like. So like, who do we have today and what are we going to talk about? If you're following Wild Country, you already know the answer. Can you tell me in the comment section who are we bringing today on the live session? Saying, let me tell you, today the adventure personality who would be joining today is someone who has done wilderness first responder. Like, maybe उतना ही surprised हूँ. Like, if you don't know what wilderness first responder is, relax. I also don't know. The man himself is going to tell us what wilderness first responder is and everything about it. So just be till the end, be with me, and we'll get to know what wilderness first responder is. Apart from that, the person comes from the town of Lord Shiva, like Kedarnath. It is something which is on my bucket list and something which might be on your bucket list too. So he's someone who comes from the mountains only. Like, he's also someone who has led more than 200 trips and treks in the mountains, like from all over India, like Uttarakhand, Himachal, Sikkim, Ladakh, you name it, and he has done it. He's like that. And he is someone who's pursuing, and he is someone who's in the outdoors from like many years. He's living it, he's breathing it, and I'm not sure what else to talk about. Okay, so without further ado, I'll just invite him. Hi, Hello, Abhijit. James Rizwan, what's up? Jai Hind, brother. So everyone, he is Avijit I was talking about. He's the person who's wilderness first responder. ये हैं वो जो हमें आज बताएंगे wilderness first responder क्या होता है, अपनी जर्नी शेयर करेंगे इनके एडवेंचर के बारे में, एंड बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे. So please be with us, stay like in the live, and if you have any question in between the live, you can just write down in the comment section and we'll pick it up. So like Abhijit, I was telling everyone कि आपने wilderness first responder किया है. मुझे इतना आइडिया नहीं है, एंड आई थिंक जो लोग बहुत नए हैं उनको भी इतना आइडिया नहीं होगा. तो मैं स्टार्ट ही इससे करना चाहूंगा. व्हाट रियली अ विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर डू? क्या करते हैं एक विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिजवान भाई, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, पहली बार मिला मुझे ऐसे. थैंक्स. तो विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर बेसिकली एक आउटडोर कोर्स है ना. हम ट्रैक ओके. लीडर्स और आउटडोर लीडर्स और बाइक एक्सपीडिशन लीडर्स जो भी हैं, सो वी लीड पीपल इन द माउंटेन्स. व्हेन वी लीड पीपल इन द माउंटेन्स, तो हमारे साथ 15 लोग जा रहे हैं या 20 लोग जा रहे हैं, उन सब का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हमारे हमारे ऊपर होता है, राइट. किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी का थोड़ा सा पैर का छिलका निकल गया, किसी का थोड़ा सा पैर टूट गया, तो कहाँ कहाँ जाओगे आप? वहां पे तो आपके पास डॉक्टर नहीं है, राइट. आप जंगल में करेक्ट. बैठे हो, वहां पे तो कोई डॉक्टर नहीं आ जाता है. तो वो जो फर्स्ट एड आप देते हो, वो जो आप प्रॉब्लम का पता करते हो, फॉर मी विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज ऑल अबाउट नोइंग द प्रॉब्लम. सॉल्यूशन तो बहुत बात का टाइम है. आप जो आपकी जो स्टडी है उससे आप एकदम पता तो कर पाओ कि अच्छा ये प्रॉब्लम इसको हुई है. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेविंग दोस 5 मिनट्स, जो आप बाद में डॉक्टर को जाके बताएंगे कि अच्छा ये इसको है. तो वो एक 5 मिनट जो है करेक्ट. वो एक इंसान की लाइफ सेव कर सकता है. सो फॉर मी इट इज लाइक दैट. करेक्ट. ओ ओ मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्योंकि हम्म. अगर आप
विल्डरनेस में सिचुएशन हैंडल करना ही नहीं आ रहा तो फिर कैसे होगा? कुछ भी हो सकता है वहां पे। फिर बूम बाम हो जाएगा। ओके। तो लाइक आई हैव मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए बिकॉज आपने इतने साल आउटडोर्स में निकाले हैं, आपने इतने बड़े बड़े कोर्सेज किए हैं, विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर किया है। तो मैं जानना चाहूंगा what मतलब क्या ऐसा हुआ कि आपको विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर सोचा कि मेरे को ये कोर्स करना है? व्हाट मेड यू थिंक कि विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर करना चाहिए? So when I joined, so I was leading trips since 2015, I guess. तो मैं जब शुरू हाँ करता था हाँ। उस समय पे तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था क्या मैं, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं गाइड कर रहा हूँ। मतलब when I was doing it, I didn't even know कि अच्छा अच्छा okay, I am leading a trip. By the time I joined some organizations, वहाँ पे हमको बेसिक ट्रेनिंग मिलता था कि अच्छा क्या क्या है, हेप क्या होता है, हेस क्या होता है, ऑल सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स वो था। बट जब मैं आउटडोर्स हम्म। में लीड करना शुरू किया तो मुझे काफी चीजें ऐसे पता लगी कि अच्छा किसी का अगर नी ही ट्विस्ट हो गया है, नी अगर एकदम पटेला ही आउट हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हम्म। अगर मैंने किसी को देखा अच्छा किसी के यहाँ कट हो गया है, या किसी का ये किसी का आई इन्फेक्शन है, इतना सारा ट्रेनिंग मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिला। तो देन आई वाज सर्चिंग फॉर कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस चीज को और वो करूँ कि जो मेरे साथ जा रहे हैं कम से कम मैं कॉन्फिडेंट रहूँ कि किसी को कुछ करेक्ट। हुआ तो आई एम देयर टू हेल्प देम। तो देन आई सर्च फॉर इट एंड देन आई गॉट डब्ल्यू। तो प्राउड ओके। डब्ल्यू राइट नाउ। And I am proud of you. And I think people in the comment section are also very proud of you. Okay. तो हम्बल्ड हम्बल्ड। ऑब्वियसली आपने अगर विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर किया है ना आपने, क्योंकि इतने सारे आउटडोर ट्रिप्स भी लीड किए हैं, तो ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जिसमें आपने लोगों की जान बचाई हो। तो मतलब कैसा लगता है किसी की जान बचा के? एंड कुछ सिचुएशन अगर आप हाईलाइट करना चाहें। अ, हाँ जान तो बचाया है, और जान बचाने के चक्कर में खुद भी चोट खाया है। तो मतलब बहुत टाइम पे बहुत चीजें होता है। देखो जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि डब्ल्यू क्यों जरूरी है। आई वाज लीडिंग अ ट्रैक कॉल्ड भृगु लेक, ये आपका हाँ हाँ। हिमाचल में। ठीक है, तो मैं उस समय पे, ये 2019 का बात है, तो मेरे को हेपेस का ट्रेनिंग था वहाँ पे, वो चीजें था। तो मैं चल रहा था एंड वी वर अप्रोचिंग रोलाकोली कैंप साइट, दैट इज एट 12,500 फीट। वहाँ पे हेप सिम्टम्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे हेप होना ही होना है, बट देर इज पॉसिबिलिटी। तो वहाँ पे एक दूसरी टीम का बैच था, तो मेरे को वॉकी आया कि विजित भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं बस आने वाला हूँ, 2 किलोमीटर है। तो बोला आप जल्दी जल्दी आ जाओ। हम्म। मैंने कहा क्या हुआ, बोला यहाँ पे कोई बीमार हो गया। तो मैं वहाँ पे रश किया। तो मैंने अपने गाइड को बोला आप लेके आओ, आप यहाँ पे बस 2 किलोमीटर है, मैं जाके देखता हूँ थोड़ा। मतलब कंडीशन बहुत ही सीवियर बोल रहे थे। तो देन आई रश्ड। मैं जब वहां पे पहुंचा तो बहुत सारा भीड़ था, मतलब ऐसा 20-30 लोग एक एक छोटी सी लड़की को घेर के खड़े हो रखे थे। और जब मैंने उसको देखा तो वो लड़की पूरी नीली पड़ी हुई थी। व्हेन आई चेक्ड, तो माउंटेन सिकनेस तो मुझे कंफर्म लग गया था कि है, बट देन आई चेक्ड एंड आई सस्पेक्ट हेप। तो मैंने उनके ट्रैक लीडर को बोला कि आप डायमॉक्स देना 1 मिनट। तो देन ही आस्क्ड मी दैट डायमॉक्स क्या होता है। तो उस समय पे मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें पता होनी चाहिए वट एवर। मतलब कहाँ भी आप लीड कर रहे हो, चाहे आप छोटा माउंटेन लीड कर रहे हो, देखो माउंटेन कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे पहाड़ में एक सेइंग है बहुत पुरानी, कि पहाड़ आपको आपकी औकात दिखा देता है। आप चाहे कितने ही बड़े माउंटेनियर क्यों ना हो, वो होता ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो मैंने वो टाइम सेव किया, जो मैंने उनका सस्पेक्ट किया है और हमने उसको नीचे डिसेंड कराया और फिर मनाली भेजा, एंड देन द डॉक्टर हिमसेल्फ टोल्ड कि अच्छा वो आपने ये टाइम पे सस्पेक्ट करके नीचे भेज दिया, नहीं तो कंडीशन सीवियर हो सकती थी। तो इन चीजों के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप मेडिकली ट्रेंड हो। मैं तो मतलब आपकी स्टोरी में ही खो गया, मैं सुन रहा था ध्यान से कि क्या क्या होता है। और मतलब ऑब्वियसली आगे 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 की कॉन्वर्जेशन में और सारी स्टोरीज आएंगी, एंड जो भी जनता देख रही है, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज आने वाली हैं, तो बने रहिए। एंड आपको कुछ क्वेश्चंस हैं विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, आउटडोर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसको पूरे लाइव में कहीं ना कहीं जरूर कवर करूंगा। ओके। तो मूविंग ऑन, क्योंकि आप मेरे को बता रहे थे कि लोगों की जान बचाना तो जरूरी है ही, आउटडोर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, एंड कहीं ना कहीं जब आप जान बचाते हो तो आपकी लाइफ भी रिस्क में आती है। एंड क्योंकि आपकी लाइफ रिस्क में आती है तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को ऐसा लगता होगा कि आप आउटडोर्स में हो, आप फिक्र रहती होगी, हर पेरेंट्स को रहती है। सो व्हाट डज योर पेरेंट थिंक अबाउट, क्या कहते हैं वो इसके बारे में? वो परेशान ही रहते हैं। और जब मैं घर आता हूँ छुट्टी के बाद तो वो यही बोलते हैं कि वापस नहीं जाना है। तो मेरी दादी स्पेशली, मेरी दादी को तो ऐसा हाँ लगता हाँ। है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो मेरी दादी तो मुझे यही बोलती है कि कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे रहना है। तो गढ़वाली में बोलती है कि कुछ ना करिए कि बैठ रहो गौर माँ।
तो वही चीजें बोलती रहती है, कहीं नहीं जाना है इधर ही बैठ सरकारी नौकरी की तैयारी कर। तो अभी भी वही चीजें हैं। हाँ, तो उनको भी, उनके साइड से भी अगर आप देखोगे तो एक फिक्र है, बिकॉज जितना हमारा जो बिल्कुल। जॉब है, मतलब इसके बहुत सारे प्रोज हैं, बट एट द सेम टाइम इसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं। बिकॉज आप किसी भी आउटडोर लीडर से पूछो जो एक बड़ी एक्सपेडिशन प्लान कर रहा है, कई बार हमें भी ऐसा श्योरिटी नहीं होता है कि हम वापस भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो आप हम्म। काफी टाइम समय तक घर वालों से आउट रहते हो, आपका पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो आप मतलब सिर्फ हम्म। लोगों के लिए और पहाड़ों के लिए ही जी रहे हो। बट उसके यार वो इतना सोचना नहीं, क्योंकि ये लाइफ मैंने चूज किया है। तो इसके जो भी चीजें हैं वो मुझे ही उठाना है, और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। वो थोड़ा बहुत ठीक है, वो भी टाइम के साथ समझ जाएंगे। अब उनको भी है कि बेटा हाथ से निकल गया तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ, अगर मैंने ये लाइफ चूज की है तो कहीं ना कहीं मुझे लिव अप करना है इसमें। जिंदगी एक ही है सर, जीनी चाहिए। बस ऐसा नहीं कि चल बिल्कुल। रहा है, जो लोग बोलते हैं ना कि चल रहा है, अरे चलाओ मत यार, जियो उस चीज को। जब तक मजा नहीं है ना कहीं बिल्कुल। पे, वो करने का फायदा ही नहीं है। जनता सुन रही है और इंस्पायर हो रही है आपसे। हाँ, इंस्पायर होके अपनी जॉब मत छोड़ देना। नहीं, इंस्पायर होके लोग करते भी है, डिसीजन ले लेते हैं। विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर की बात कर रहे हैं, अब जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं और जिन लोगों को जानना है कि वर्ल्ड विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर करना तो है, मतलब इंपॉर्टेंस लोगों को पता चल गई है, बट मे बी इनको ये नहीं पता हो कि कहाँ से करना है। तो आप उस पर कुछ बता सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ विल्डरनेस फर्स्ट कराया जाता है, कहाँ से कर सकते हैं लोग? एज फार एज आई नो, आप दो जगह से विल्डरनेस वर्सेस पॉन्डर कर सकते हैं। जो हाँ मैंने हाँ। किया है नॉल से, नेशनल आउटडोर लर्निंग स्कूल। ये रानीखेत में, उत्तराखंड में एक जगह है ओके। रानीखेत, ये वहां पे कराते हैं। सो इट इज अ 10 डे कोर्स। ओके। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज हेनिफिल सेंटर, ये आईएमएफ के कोलैबोरेशन में न्यू दिल्ली में ही कराते हैं। तो आप अच्छा। इन दो जगह से अभी फिलहाल इंडिया में ये कोर्स कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, आपका 10 दिन का कोर्स होता है। और ट्रस्ट मी, ओके। बहुत अच्छा कोर्स है, बिकॉज आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। सिनेरियोज होते हैं जो वहीं पे वो लोग करवाते हैं कि अच्छा हाँ, अगर ऐसे हो गया तो कैसे हो जाएगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोल दिया कि अच्छा वो टांग टूट गया, उसको ऐसे बांध देना फिर ऐसे कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो टांग तोड़ते हैं वहां पे, मतलब तोड़ते हैं, मतलब ऐसे नहीं तोड़ देते हैं, उसको दिखाते हैं कि अच्छा अगर ये टूट गया तो डेमो। स्प्लिट कैसे बांधना है। तो बेसिकली WFR इज ऑल अबाउट विल्डरनेस में। आपके पास देखो हर चीज तो नहीं होता है, आपके पास स्ट्रेचर हो सकता है, बट व्हाट इफ अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो भी हम्म। चीज अवेलेबल है वहां पे, आपके कपड़े से लेके आपका ईयरफोन भी, कुछ भी, उन चीजों से ही आपको फर्स्ट एड कैसे देना। आपके पास जो भी चीज ओह। अवेलेबल है, जो भी चीज वहां पे अवेलेबल है, उन चीजों से आपको फर्स्ट एड कैसे देना है वो सिखाया जाता है। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि जो भी आउटडोर में करियर बनाना चाहता है, या अगर आउटडोर में हम्म। करियर भी नहीं बनाना चाह रहा है, मतलब सिर्फ अगर आप हम्म। एक्सपेडिशन बहुत ही फ्रीक्वेंट करते हैं, तब भी मतलब यू शुड डू द कोर्स, बिकॉज आप अपने साथ बहुत लोगों का लाइफ बचा सकते हैं। और दुनिया में जिंदगी कर बचाने से बड़ा काम तो कोई है ही। ही कमेंट सेक्शन से पूछना चाह रहे हैं, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी ट्रैक लीडर टू डू दिस कोर्स? क्या जरूरी है एक ट्रैक लीडर के लिए कोर्स करना? ऐसे कोई नॉर्म्स तो नहीं है इंडिया में कहीं पे भी कि आपको जरूरी है ये कोर्स करना। हम्म। मेरे हिसाब से होने चाहिए आने वाले टाइम पे कि मेडिकल सर्टिफिकेशन एक मस्ट चीज होना चाहिए इफ यू वांट टू बी एन आउटडोर लीडर। बट करंटली देर आर नो सच नॉर्म्स कि आपको करना ही करना है। बट आपको हम्म। खुद के लिए करना चाहिए, बिकॉज आप जब ये कोर्स या स्टडी करके जब जाएंगे ना, तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अच्छा आई एम लीडिंग अ ट्रैक। कॉन्फिडेंट है कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जोर तो लगा सकते हैं। और कितने ये क्या कहते हैं, आप आपने बोला 10 दिन का ये कोर्स होता है, तो ये हाँ, ये दस कोर्स दिन का। करने से, ये कोर्स करने से पहले भी कुछ ऐसा देखा जाता है कि आपके पास कुछ और सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि माउंटेनियरिंग में होता है एएमसी बीएमसी, ऐसा कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं या नहीं फिर नहीं, क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बस जाओ, एनरोल अच्छा। करो। हाँ, और आप कर हाँ। सकते हो। मतलब ऐसा ओके। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रैक लीडर ही कोर्स करेगा या कोई भी हाँ एक्सपेडिशन हाँ। लीडर ही कोर्स करेगा। एनी वन हु वांट्स टू डू इट कैन डू इट। ओके। ऑल्सो क्या आप कुछ ऐसा थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए कि इस कोर्स का कितना प्राइस रेंज या कॉस्ट, कितना कितने फीस होती है इस कोर्स की, कोई आइडिया थोड़ा सा? हाँ, जब मैंने किया था 2020 में, उस टाइम पे इट वाज अराउंड 34 के आसपास था। अभी मैंने अच्छा। रिसेंटली सुना है ये 44 के आसपास है नॉल्स में। और हेनिफेल में ये कम है, हेनिफेल में अराउंड ये 25 के आसपास है। तो जो भी सुन रहा है प्लीज नोट डाउन कि आपको अगर ये करना है तो कहाँ से सकते हैं, क्या प्राइस रेंज है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अभिजीत, मैंने सुना है कि आपने अपनी खुद की कंपनी पीका एडवेंचर्स करके स्टार्ट की है।
आफ्टर आफ्टर आपके विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बाद, तो कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, इट्स बीन जस्ट 40 days कि वो शुरू हुआ है। होप थैंकफुली काफी नहीं टू द है। मैजेस्टिक माउंटेन गॉड हमारे 3-4 बैच अभी निकल चुके हैं। गुड। तो मतलब मैंने बहुत साल काम किया, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया, एंड व्हेन आई वाज लीडिंग तो मैंने बहुत चीजें देखा कि जो चीजें मुझे लगता था कि मुझे जब भी मैं मतलब खोलूंगा वगैरह वगैरह तब मैं करूंगा। तो मैं जब ग्रुप ले आता था तो बहुत बड़े बड़े साइज होते थे, लाइक 30+, 35+। मुझे उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उस समय पे तो मैंने एंजॉय किया। बट मैं जब बाद में ग्रुप के आता था, छोड़ के आता था समटाइम्स, चलो अगर 10-11 दिन का बड़ा ट्रैक है तो आप हर किसी को अटेंशन दे सकते हैं, राइट। बट अगर सिर्फ 4-5 दिन का ट्रैक है तो 36 लोगों को 36 बहुत बड़ा एक नंबर होता है जिसको आप देना चाहते हैं अटेंशन, आप नहीं दे पाते। मतलब कोई बोलेगा दे देता हूँ मैं हर किसी को, मैं नहीं मानता। तो मैंने ये सोचा था कि व्हेनेवर आई स्टार्ट माय ओन वेंचर तो मैं यही रखूंगा कि मैक्सिमम ग्रुप साइज में 10 से 12 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। और व्हेन आई एम ओके। अभी तो आई एम पर्सनली लीडिंग द ट्रैक विद माय पार्टनर। तो अभी हम जब करते हैं तो हम यही चाह रहे हैं कि एक कस्टमाइज ग्रुप को, एक नॉर्मल से छोटे से ग्रुप को हम कितना ज्यादा माउंटेन नॉलेज दे सकें। और हम सिर्फ ये नहीं है कि घुमा के ले आ गए। सपोज, चलो आपको मैं एक बात बताता हूँ, सपोज हम रूपकुंड लेके गए आपको, रिजवान बिल्कुल। भाई, आपको हम रूपकुंड लेके गए। आप रूपकुंड पहली बार कर रहे हो, आप अब वापस आपने जाके बोल किसी ने दिया है, आपको लेके पूछा। तो जाना पड़ेगा आपको नेक्स्ट टाइम। अब आपने बोल दिया है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो आपसे अगर किसी ने, आपके दोस्त ने पूछा आप कहाँ गए, रूपकुंड। क्या किया, रूपकुंड। क्या देखा, रूपकुंड। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं जब भी जाता हूँ तो सिंपल सा सीन ये है कि वो जब वापस आए वो थोड़ा बहुत उस ट्रैक का नॉलेज लेके आए, उसको बिल्कुल। उस ट्रैक का मतलब A to Z पता हो कि मैंने क्या देखा। मैंने वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट साइप्रस ट्रीज देखे, मैंने एशिया का सबसे बड़ा आली बेदनी बुग्याल देखा, मैंने वो ट्रांजिशन देखा कि अच्छा वो डेंस फॉरेस्ट से वो मेडो में गया, वो फिर मोरेन लैंड में गया, एंड देन वी सॉ दैट समिट, एंड देन वी सॉ दैट त्रिशूल, उसका हाइट कितना था। तो ये सब माउंटेन नॉलेज विद द माउंटेन स्टोरीज कि हाँ भाई ये क्यों है। हर पहाड़ों में हर एक हम्म। जगह का एक सिग्निफिकेंस है, वो चाहे कल्चरल सिग्निफिकेंस हो या वहां पे कुछ माउंटेनियरिंग स्टोरीज हो, तो वो आप बताओ उनको। करेक्ट। एट द सेम टाइम टीच देम व्हाट इज दिस थिंग दैट इज कॉल्ड आउटडोर्स। इतने बड़े टीचर्स हम्म। हैं, आप क्या आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। तो पीका एडवेंचर्स यही है कि आप आओ और आप माउंटेन्स को फील करो, माउंटेन्स से आप सारी एडवेंचर एक्टिविटीज देखो। करेंटली वी आर डूइंग ट्रैक्स, बट हमारा विजन बड़ा है कि हम इसको साइकिलिंग एक्सपीडिशंस में भी ले जाएंगे, हम बाइकिंग एक्सपीडिशंस में भी ले जाएंगे, एंड देन एवरी ओके। एडवेंचर एक्टिविटी विल कवर। तो आपने जो इतना अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चले, मैं भी चाहता हूँ मुझे रूट पॉइंट और बाकी ट्रैक्स के बारे में पता चले ताकि मैं वापस आके लोगों को बता सकूं। प्लीज मुझे लेके जाएं और उसके बाद प्लीज आप बुक आपके साथ करें। जाऊं। डेफिनेटली। डेफिनेटली मैं पीका एडवेंचर्स के थ्रू जाऊंगा और अच्छी स्टोरीज वापस लेके आऊंगा। स्टोरीज से याद यस। आया, आपने इतने सारे ट्रैक्स किए हैं, आपने इतने सारे एक्सपेडिशंस भी किए हैं, फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? फनी फनी हाँ फनी था, मतलब थोड़ा सा सीरियस था बट वो बाद में एक्चुअली फनी हो गया था। तो फन हो गया। हम, हाँ, हम रुपिन पास कर रहे थे। तो रुपिन पास 2019 में इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रैक्स ऑफ द कंट्री, 2 डेथ्स हो गई थी। ओके। तो ओके। हमारा अराउंड, मुझे याद है, एक्सटेंडेड विंटर्स थे, तो वी विटनेस स्नोफॉल ऑन 17 जून, जो कि एक प्योर इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। तो मेरा हाँ 20 हाँ। लोगों का बैच था। तो हम पहुंचे पहुंचे मतलब वी आर गोइंग गुड। लोअर वाटरफॉल पे मैंने ब्रीफ किया कि इसके बाद 2 दिन बहुत टफ रहेंगे क्योंकि अपर वाटरफॉल एंड देन पास, और बर्फ बहुत ज्यादा था, हमको रूट फिर से बनाना था। तो हम अपर वाटरफॉल तो बहुत अच्छे से पहुंच गए, एंड देन हम चालू किए आपका पास के लिए। तो 3:30 अराउंड इन द मॉर्निंग वी स्टार्टेड। तो हम बस एक एक राता फेरी पहुंचे थे हम, 1-1.5 घंटा हुआ था। उसके बाद पास ज्यादा दूर नहीं था, मतलब वो अराउंड 40-45 मिनट्स में हम कर लेते। तो इतने में मैं जब, और हम जब चलते हैं ना ट्रैक्टर से साइड में चलना पड़ता है, हर किसी को देखना पड़ता है कि अच्छा इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे हिट कर सकता है एमएस कभी भी अचानक से। और जब मैं एक करेक्ट। एक बंदे के पास गया और वो ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। तो बोला कि जैसे भूल भुलैया देखा आपने, उसमें नहीं करता मंजू की हाँ तरह हाँ। करके, तो वैसे ही कर रहा था वो कुछ। तो देन आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट हैपेंड। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था। तो मैंने उसको, उसने मेरे को एक चीज बोली कि मेरा सर फटा जा रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो आई सस्पेक्ट हेज, सेरेब्रल एडेमा, मैंने सस्पेक्ट किया उसको। तो मैंने कुछ जो भी हमारी ट्रेनिंग थी, मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट मैं एक्साइटेड भी था कि वो हेज केस, हेज केस, मतलब मेरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल होगा। बट मैं फिर थोड़ा सा
कॉन्शियस भी था और थोड़ा नर्वस भी हो रहा था कि यार हेस क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट मतलब ना करना, और उसको उस पेशेंट को हैंडल करना। तो मैंने उसको जो भी चीजें किया तो मेरे को पता चला इसकी इसको हेस है। तो वहां पे मुझे उसको डायमॉक्स बूस्टर देना था, और हेस का पेशेंट कई बार अगर वो इतना चिढ़ जाता है कि उसके हाथ में अगर कुछ भी होगा वो मार सकता है आपको। ठीक ओहो। है, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा डू यू ट्रस्ट मी? तो उसने मुझे बोला कि करंटली जस्ट यू। मैंने कहा ठीक है। सिर्फ तुम, हाँ, सिर्फ तो तुम। वो पता नहीं उसने कैसे बोल दिया। तो मैंने उसको डेक्सा दिया, मैंने उसको कुछ 8 mg डेक्स दिया था रिजवान भाई। मानो 8 mg डेक्स का मतलब है 16 गोली देना। सोचो आप ओके। किसी को 16 गोली अगर एडवाइस कर रहे हो और उसको वो खानी है, तो मतलब इट्स अ डैम बिग थिंग। तो उसने खाया और या वो थोड़ा सा ना चलने लगा। इतने में मैं जब आगे देखा तो एक बंदा थोड़ा सा ना फॉल हो गया था उसका। हाँ। वो थोड़ा सा नीचे गिरा 50 फीट करीब, तो मैं दौड़ा उसके पास। तो अभी तो मैं हंस के बता रहा हूँ क्योंकि उस समय पे थोड़ा अलग था। उस समय भी मैं थोड़ा बहुत ऐसी स्माइल कर रहा था कि हो क्या रहा है। तो मेरे को बोला कि मैं मतलब मैं पहली बार आया हूँ। डर गया था एकदम से, वो रोने जैसा लग गया कि मेरे को इतने ऊपर कैसे आ गया। तो मैंने उसको पूछा, जब मैंने आपको ब्रीफिंग में पूछा था कि मतलब दिस इज योर फर्स्ट ट्रैक, तो उसने नहीं, उसने मतलब मैंने तो 3-4 ट्रैक किए हुए हैं। तो मैंने हम्म। कहा आप क्यों बोल रहे हो फिर ऐसा? तो कहता है कि उस समय मुझे लगा कि आप मुझे नीचे भेज दोगे। ऐसे टोन में बोलते हैं यार, मजा आता है कई बार। तो फिर मैं उसको ऊपर लेके आया, ठीक है। एंड ही वाज 85 kgs रिजवान, मतलब ओ भारी माय था, गॉड। भारी था वो। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं उसको पीछे देखने गया, जो एक हेस वाला भी था, 2 पेशेंट थे मेरे पास। तो थोड़ा सा गया हाँ। मैं, इस बार ये नीचे गिरा, तो इस बार ये करीबन 70 फीट अराउंड नीचे गिरा। और जब मैं इस बार इसको नीचे बचाने के लिए कूदा, तो तब तक ये मेंटल ट्रॉमा में चले गया था। इसने मेरे को देखते ही पूछा कि आप कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया, ऐसे। डैम। तो फिर मैंने डैम। अपने गाइड्स को बोला कि मैंने कहा आप आओ, इसको उठाना मेरे से नहीं होगा क्योंकि एक बंदा नहीं उठा सकता एक मेंटल ट्रॉमा वाले आदमी को। उसको मैं ऊपर लेके आया। उसके बाद सिर्फ लास्ट का गली बची थी, हमारी रुपिन गली बची थी बस, तो हमको बस वही हाँ करना हाँ। था। तो अब ये हेस वाला ना थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का हो गया, हंस रहा था फालतू फालतू का पागल की तरह। तो मैंने उसको हाथ पकड़ा, मैंने अपने टेक्निकल गाइड को बोला, मैंने कहा सर यहाँ पे से मैं लेके जाता हूँ इन दोनों को, और आप ग्रुप लेके आओ। तो मैं फिर चला, ऊपर चला। तो उसको मैंने ऐसे हाथ पकड़ के खींच रहा था, और इसको मैंने बोला था कि तुम मेरे कंधे पे सपोर्ट लेके चलते रहे। तो जो मेंटल ट्रोमा वाला पेशेंट था वो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मतलब हमने स्पाइक्स पहने हुए थे, बिकॉज वी वॉकिंग ऑन द स्नो, हार्ड स्नो था, स्पाइक्स पहने हुए थे। इतने में क्या होता है कि मैं चल रहा हूँ और जो मेरे ऊपर चल रहा था वो फिसला, और उसकी हम्म। स्पाइक सीधा सीधा मेरे नी पे गिर गई, और मेरे पटेला से ठीक लेफ्ट साइड को उसका पचाक से आवाज आया, अंदर घुस गया था। तो मुझे दर्द भी हुआ हल्का हल्का। फिर मैंने हटाया उसको, फिर उसको ऊपर ठेला, ठेला मतलब ऐसे ऊपर किया। तो ऊपर थोड़ा उठाया। गढ़ वाली वर्ड्स आएंगे हाँ बीच में, तो थोड़ा पार्डन मी। तो ऊपर से ऐसे उसको ऊपर किया, फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वो नीचे गिरा। तो और फिर वो वहीं पे गिरा। मैं आपको स्कार दिखाता हूँ, अभी तक है। तो ये हाँ। ये ओहो। ये ये है। यही। तो अंदर अंदर घुस घुस जैसे गया था वो ना। तो जब मैं पास पे पहुंचा, तो मैं जैसे इसे खड़ा हुआ, और मेरा एक पैर इतना तेज गिरा कि मैं नीचे गिर गया। तो मेरे पास आता, मेरे पास कहता है कि आप मेरे भगवान हो, आप ही से मैं सब कुछ कहूँ। और मैं मन ही मन बोल रहा हूँ, हट साले भगवान, भगवान का पैर तो टूट गया तेरा। तेरी वजह से मैं तो लंगड़ा हो गया। ऊपर से उसके भूल बाद भी में गया ना। लिटरली, हाँ ऊपर से भूल भी गया, पहले वो बोलता है सिर्फ तुम, अब बोलता है आप कौन। हाँ, कहता है आप कौन, ऐसे ऐसे होता है। तो कई बार मतलब उस समय पे थोड़ा थोड़ा उस समय पे वो रहता है कि दिमाग में, बट बाद में यही कहानियां सुनाने में मजा भी आता है कि अच्छा ऐसे ऐसी चीजें किया। वो भी, वो भी है। मतलब ओके लास्ट ओके। 3-4 इयर्स मैंने करीबन 3 से 4 फ्रैक्चर खाए अपनी बॉडी में, ऑल वाइल सेविंग द ट्रैकर्स। बट एक चीज का हमेशा प्राउड रहता है रिजवान भाई, कि मेरी वजह से मेरे 6 साल के करियर में इतने ट्रिप्स में कभी किसी ट्रैकर को इंजरी नहीं होने दिया मैंने, या उसको ऐसा कुछ बड़ा कुछ हो। तो उस चीज का थोड़ा सा ऐसे ऑडियंस खुशी आपकी आती है। तरफ से हार्ट्स एंड क्लैप्स बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभिजीत की जर्नी में अभी तक एक भी इंजरी किसी भी ट्रैकर को नहीं मेजर हुई है। इंजरी, उन्होंने मेजर इंजरी, मेजर मेजर इंजरी। इंजरी। हाँ, छोटा बहुत तो होता रहता अ है। राउंड ऑफ होता रहता अप्लॉज है। फ्रॉम माय साइड, बस बस। मेरी तरफ से, अरे और एक बस फ्लाइंग बस। सल्यूट। हाँ, आपको भी। आपके बारे में थोड़ा मुझे पता चला था, जिसमें एक स्टोरी मुझे पता चली थी कि आपने वो ट्रैकिंग पहली बार जब सुना था तो कुछ हुआ था, उसके उसके बारे में बताइए। हाँ, वो भी एक मस्त था। तो मुझे ना इंग्लिश नहीं आता था पहले, क्योंकि हम
ऐसी मतलब ये गाँव में पढ़े तो अंग्रेजी का, और भी एक तो शर्म होती है पहाड़ियों में, बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है कुछ भी चीज बोलने का। आता भी होगा फिर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, पता नहीं क्यों, जीन्स में ऐसा है। तो मैं आर्मी स्कूल गया था, तो आर्मी स्कूल में वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में चीजें होता था। तो पहले दिन मेरा इंट्रोडक्शन था, एक तो मैं डरा हुआ था, और उसने मेरे से पूछा कि वेर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा केदारनाथ। तो कहते कि आपने तो ट्रैकिंग किया होगा। मैंने कहा है, तो मेरा यही यही रिएक्शन था। मैंने कहा क्या? बोला ट्रैकिंग तो आपने किया होगा। मैंने कहा क्या? तो बोला ट्रैकिंग, ये 2007-8 की बात है। ओके। उस समय पे इतना कल्चर में भी नहीं था ये ट्रैकिंग वगैरह। हाँ 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 तो उसने हाँ। पूछा कि आपका घर कहाँ है। मैंने बोला आपका गांव कहाँ है। मैंने बोला ऐसे सड़क से मेरा गांव 3 किलोमीटर ऊपर है। बोला वहां कैसे जाते हो। मैंने बोला चल के। बोला उसको ही ट्रैक कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तब तो हम चाइल्डहुड, मतलब मैंने कहा तब तो बचपन से करते हैं हम ट्रैकिंग। तो मुझे पता ही नहीं था कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो ट्रैकिंग होता है। अभी क्योंकि आप माउंटेन में इतना रहे हैं और बहुत सारे माउंटेन पीक्स भी आपने क्लाइंब किए होंगे और जितने एक्सपेडिशन किए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर इफ यू वर अ माउंटेन, आप कोई माउंटेन माउंटेन होते तो आप क्या नाम देते, या क्या कौन से वाले माउंटेन माउंटेन होते आप? मैं चौखंबा। चौखंबा क्या अमेजिंग है, चौखंबा, या क्या, क्यों, किस लिए? मैं आपको दिखाता हूँ किस लिए। रुको। तो ये अगस्मुनी है, ये मेरा घर है, ओके। ठीक है ना। और वाओ यहाँ से, वाओ यहाँ से सीधा सीधा चौखंबा दिखता है। तो वाओ। हम, मेरे हाँ को तो अभी भी, हाँ तो यहाँ पे से मेरा घर यहाँ नीचे कहीं है। तो हम यहाँ से हाँ यहाँ हाँ। पे पानी लेने के लिए आते थे। ओके। तो हम जैसे अभी भी मैं पानी लेने ही आया हूँ बेसिकली। तो हाँ हाँ। पीने के लिए पानी लेने के लिए थोड़ा दूर आना अच्छा। पड़ता पहाड़ों में। हाँ। तो पानी ओके। लेने आते थे, तो वो चौखंबा में हमेशा दिखता था छोटे से। हमें पता नहीं था इसका मतलब हाँ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इतना ज्यादा। बट वो एक ऐसा माउंटेन है जो मैं जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने वही देखा। तो ओके वो मेरे ओके। दिल के बहुत करीब है। काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। ओके। अभिजीत, मैंने मैंने आप मतलब जैसे कि मैंने जब लाइव स्टार्ट किया था, मैंने ऑडियंस को बताया कि पीपल हु आर ऑन दी ऐप, जो भी एडवेंचर पीपल हैं, वी सी देयर कंटेंट, वी गेट इंस्पायर्ड, एंड हम देखते हैं कि क्या एडवेंचर अमेजिंग और एक्सेप्शनल कर रहे हैं। वी रीच आउट टू देम कि व्हाट, उनका स्टोरीज और एक्सपीरियंस जानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको वाइल्ड कंट्री ऐप के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे वाइल्ड कंट्री ऐप के बारे में मेरा मेरा दोस्त है लियो, शायद वो काम ओके। करता था उसमें वाइल्ड कंट्री में ही। तो उसने मुझे बोला था कि हाँ बाबा मतलब ये एक ऐप है, इसमें सारे एथलीट्स होते हैं, तो इसको ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा चल यार ये कुछ बता रहा है तो मतलब ये कुछ ढंग का ही बता रहा होगा। देन आई ज्वाइन। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सीरियसली वहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये लगी कि जैसे इंस्टाग्राम है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ हाँ। इंस्टाग्राम, मेरे को बहुत अच्छी पहचान भी मिला है इंस्टाग्राम से, तो वो नहीं। बट वहाँ पे बहुत ही आपका ना स्पेसिफिकली नहीं होता है। जैसे अच्छा एडवेंचर रिलेटेड चीजें हैं तो वही लोग आपको मिल रहे हैं। जैसे मैं जो चाह रहा हूँ कि करेक्ट। अच्छा मैं किसी से ऐसे से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि हाँ ये बंदा मुझे ट्रैकिंग के लिए चाहिए या ये बंदा मुझे साइकिलिंग के लिए चाहिए। यहाँ पे आपको अदर एप्स में आपको ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पे बड़ा ही एडवेंचर सेंट्रिक वो ऐप है कि अच्छा आपको सिर्फ एडवेंचर एंथुसियास्ट या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वही आपको लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो दैट इज रियली गुड। ओके। उसमें मजा भी आता है जरा। अभी आप आपका एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है उस पे? हाँ मजा आ रहा है, नया नया चीज बहुत मजा आता है ऐसे। और उसमें एक और चीज अच्छा है, उसमें ब्लॉग ब्लॉग भी है, लोग लिखते भी है ना बड़ा बड़ा चीजें। करेक्ट। तो किसी ट्रैक की करेक्ट। स्टोरी लिख दी तो मैं खाली टाइम में पढ़ता हूँ उन चीजों को। तो दैट इज अ गुड थिंग। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो जो वाइल्ड कंट्री ऐप है, इस पे आप कुछ भी एडवेंचर करते हैं उसके बारे में यू कैन पोस्ट अ पिक्चर, यू कैन राइट अबाउट इट, यू कैन शेयर योर रिव्यूज। जो भी ब्रांड है आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो एडवेंचर वाले लोग हैं दूसरे एडवेंचर्स में, राफ्टिंग, कायाकिंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, जो भी, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोफाइल एंड कम्युनिटी। एक और सेक्शन है ट्राइब, जहां पे आप खुद की कम्युनिटी भी बना सकते हैं अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स से आप जिस भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में है। तो if you're not there on the wild country app, you can check our bio, click the link and download the app, and आप वहां पे फिर अभिजीत की बहुत सारी एडवेंचर स्टोरीज देख सकते हैं, उनका कंटेंट देख सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप ओके नाउ। ओके। डाउनलोड दी ऐप नाउ। ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है और आपकी जो कंपनी जो 40 डेज आपने बोला न्यू है उसके लिए। तो वाइल्ड कंट्री ऐप, जैसा कि मैंने बताया और आपने बताया, हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवरेज वाइल्ड कंट्री ऐप फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द कंपनी?
कनेक्ट करना चाहता हूँ जो प्रॉपर एडवेंचर सीकर्स हैं उनके साथ, है ना, जो कि कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ। और मुझे लगता है कि जो आपका ऐप है वाइल्ड कंट्री है, इसमें वही लोग आ रहे हैं जो सही में एडवेंचर करते हैं या जो एडवेंचर करना चाहते हैं या उससे बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं या वगैरह वगैरह। तो करेक्ट। वो चीजों में मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से उस पे कंपनी का प्रोफाइल लॉन्च करूंगा। अभी वो मैंने किया नहीं है, अभी मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस देख रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे चलता है। तो बाय द टाइम मैं खुद का देखूंगा। जैसे आपने ये ट्राइब वाला फीचर देखा, तो अभी मैंने ये ट्राइब वाला यूज नहीं किया है, तो मैं इसको भी करना चाहता हूँ। तो उसमें काफी चीजें हैं जो बिल्कुल। मैं भी देखता हूँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ उन चीजों को। थोड़ा सा ठीक टेक्निकली है, चैलेंज ठीक हूँ ना है। मैं, तो मेरे को टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी चैलेंजेस आए आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके। डन डन डन, बस। ठीक है, नेक्स्ट राउंड पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट राउंड है समथिंग रैपिड फायर, जिसमें आपको क्विक आंसर्स देने हैं एंड बहुत इजी क्वेश्चंस हैं एंड आप बहुत अच्छे से दे देंगे, आई एम श्योर। सो लेट्स मूव ऑन टू इट। पहला आई क्वेश्चन ट्राई। है, इफ अ वुमन हिट्स ऑन यू व्हाइल यू आर लीडिंग अ ट्रैक, व्हाट वुड यू से? नो। तो व्हाई? Nice. Let it be. It's your reason. Okay. प्रोफेशनल Top प्रोफेशनल। essentials in your backpack while trekking. मेडिकल किट, मेरा Okay. चार्जर और Okay. रेनकोट। Okay. 3 चीजें Okay. हैं अगर बोले Top तो। three. Okay. और top three item in your first aid kit क्या होना चाहिए वो? LSDs, लाइफ सेविंग ड्रग्स डेफिनेटली होने चाहिए आपके। Okay. गॉजेस एंड ऑल, डेटॉल, दैट थिंग, ये सब चीजें। And also, if you are stuck in some situation, who will be that first person you will call for help? अगर ऐसी सिचुएशन में कहीं मैं फंसा तो वहां पे नेटवर्क नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, तो आई विल कॉल द माउंटेन्स। And व्हाट शुड definitely आई डू? mountains will answer. या And गॉड विल definitely डू इट। mountain will answer. One, before I conclude this live session, one question. If there is one advice which you would like to give a 17-year-old Avijit, आपके 17 साल वाले अभिजीत को आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, तो वो क्या एडवाइस होगी? मैं ये बोलूंगा, ब्रो, डू वट एवर यू वांट टू डू, यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। अभी इतना मत सोच, बाद जाके यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। That's great. That's great. Like all those people who are watching, my viewers, please download the Wild Country app. You can find the link in our bio, and वहां जाके आप अभिजीत को फॉलो करिए, उनके एडवेंचर को फॉलो करिए। तो यूजर आईडी है अभिजीत का, वो है हिम तेंदुआ, HIMTENDUA, हिम तेंदुआ, यस, उसको जाके थैंक फॉलो यू। करिए। थैंक यू सो मच अभिजीत, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में दी है, आई एम श्योर लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी होगी। एंड आई थिंक you are someone who's doing something different. Not everyone is capable of doing this thing, and we think you are hatke. You are someone who is different from other people, and that's why we are here and talking to you today. So we consider you are hatke, and it was a pleasure speaking to you again. And thank you so much for being here. थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर हैविंग मी, मींस अ लॉट। आई एम हम्बल्ड एंड सी यू सून। रूपकुंड आपको बुक करना है, राइट? चलो, Yeah, आपको जय याद हिंद। है, काफी बढ़िया। हाँ, मेरे को जय याद है। हिंद, थैंक यू चलो, सो जय मच। हिंद, जय हिंद, जय हिंद। So while Avjit is gone, I'd like to tell thank you so much everyone who's joining in, and जिसने भी ये सुना, I'm hoping that आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा आज जानने के लिए जो आपको नहीं पता होगा। And every Saturday, every weekend we do this live session to bring the adventurers from the Wild Country app here, जो आपको बताएं ऐसी चीजें जो आपको एडवेंचर के बारे में नहीं पता। So if you want to connect with these people, if you want to connect to the experts, please download the Wild Country app, click the link in bio, and I'll meet you soon with another amazing personality. Until then, tada, bye bye. Follow Wild Country.